Yes, students of class 9th. I hope so that you all are fine and safe at your home. My dear students, as you all know that chapter 8 quadrilaterals is going on, and in this chapter we have done up to question 9. Today from question 10 onwards I am going to start exercise 8.1 is going on. The question number 10 is that ABCD is a parallelogram. It is given that ABCD is a parallelogram. A, B, C and D is a parallelogram in which AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD. Diagonal BD per AP and CQ are the perpendiculars. AP and CQ are the perpendiculars on diagonal BD. Prove that triangle APB, this triangle is congruent to triangle CQD. We have to prove that this triangle is congruent to triangle CQD. Given है ABCD is a parallelogram. To prove, what we have to prove, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल APB is congruent triangle CQD. This is our first part, and our second part AP equals to CQ. ये हमें प्रूफ करना है. Now proof, I am going to start of first part. In triangle APB एंड ट्रायंगल CQD, इन दोनों ट्रायंगल में फर्स्ट एंगल APB एंड CQD ईच 90, सेकंड AB इक्वल्स टू CD अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. सो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 1 के. तो फर्स्टली एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. सेकंड वन एंगल APB इक्वल्स टू एंगल CQD ईच 90 डिग्री, एंड थर्ड वन AB इक्वल्स टू CD as ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram by एंगल साइड से, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टूल से हम व्हाट वी कैन से दैट ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQD. दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं. सिमिलरली स्टूडेंट्स, AP एंड CQ आर द पार्ट ऑफ दीज टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल. AP एंड CQ इन कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स में आ रहे हैं, तो दे आर इक्वल बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. व्हेन ट्रायंगल्स आर congruent, then we can say that their corresponding angles as well as corresponding sides are equal by CP CT से. Now question number 11. The question number 11 is that in a triangle ABC and triangle DEF, two triangles are given, ABC and triangle DEF. ABC DEF are congruent such that AB equal to DE. AB DE के इक्वल है एंड पैरेलल भी है. सेकंड वन BC इक्वल्स टू EF और पैरेलल भी है. वर्टिसेस ABC आर जॉइंट DEF. A को D से ज्वाइन किया, B को E से किया एंड C को F से ज्वाइन कर दिया. देन फिगर इज गिवन. वी हैव टू प्रूव दैट इन फर्स्ट पार्ट. प्रूफ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट. प्रूफ करना है ABED इज ए पैरेललोग्राम. माय डियर स्टूडेंट, it is given that AB equals to DE and AB parallel DE. As AB equals to DE and
AB parallel DE. One pair of opposite sides are equal and parallel. So ABED is a parallelogram. ABCD क्या हो जाएगा? ABED is a parallelogram, and we all know that in a parallelogram opposite sides are equal and parallel. Then BE equals to CF and BE parallel CF. इक्वेशन हमने 1 लेट कर लिया. Second part of this question, we have to prove that again BEFC is also a parallelogram. My dear student, BC equals to EF and BC parallel EF. It is given that अपोजिट साइड एक क्वाड्रिलेटरल BEFC की इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो BEFC भी क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम. एज BC इक्वल्स टू EF एंड BC पैरेलल EF. दिस implies BEFC is a parallelogram by the same theorem. One pair of opposite sides are equal and parallel. One pair of opposite sides are equal and parallel. तो BEFC क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा. When BEFC is a parallelogram, then we can say that कि BE here in first part ABED is a parallelogram, then BEAD के इक्वल होगा और पैरेलल होगा. किसके होगा? BEAD के. माय डियर स्टूडेंट, BEAD के इक्वल होगा और BE पैरेलल भी किसके होगा? AD के. ओके, दोबारा सुन लीजिए. Actually in first part we have to prove above ABED is a parallelogram. ABED पैरेललोग्राम प्रूफ किया है तो अपोजिट साइड ही इक्वल और पैरेलल होगी. हमने इसके ले लिया था. एक्चुअली वी हैव नॉट प्रूव्ड. हमने प्रूफ किया था ABED पैरेललोग्राम है, ना कि BEFC. BEFC को अभी पैरेललोग्राम प्रूफ किया है. जब BEFC पैरेललोग्राम हो गया तो BE CF के इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा. दिस इंप्लाइज BE इक्वल टू CF एंड BE इक्वल्स टू BE पैरेलल टू CF. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. किसी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ किया ABED पैरेललोग्राम है. इट मींस BE AD के इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा. सेकंड पार्ट में प्रूफ किया BEFC पैरेललोग्राम है तो BE CF के इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा. इन थर्ड पार्ट, एक्चुअली इन थर्ड पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट AD पैरेलल CF, AD CF के इक्वल भी और पैरेलल भी है. एक्चुअली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से वी कैन से दैट AD इक्वल्स टू CF एंड AD पैरेलल CF. एक्चुअली BE CF के भी इक्वल पैरेलल है और BE AD के इक्वल पैरेलल भी है, सो दैट AD CF के इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा. इट इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट. नाउ इन फोर्थ पार्ट में एक्चुअली ऑलरेडी वी हैव प्रूव दैट AD CF के इक्वल भी है और पैरेलल भी है. प्रूव्ड इन थर्ड क्या प्रूव किया कि AD पैरेलल है CF के एंड AD इक्वल है CF के. जब AD CF के इक्वल और पैरेलल है, दिस इंप्लाइज ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा. ACFD भी क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम. दिस इंप्लाइज ACFD इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम. और एज वी ऑल नो दैट इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल.
जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ए सी डी एफ के क्या हो जाएगा, फिफ्थ पार्ट ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, डी एफ के। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए सी एफ टी, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और इन 6 पार्ट हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल डी ई एफ के, ये प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रेंसी लगाने जा रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में। डी ई एफ में फर्स्ट ए बी इक्वल्स टू डी ई, इट इज गिवन। सेकेंड वन बी सी इक्वल्स टू ई एफ, इट इज ऑल्सो गिवन। थर्ड वन AC equals to DF, proved in fifth by side से triangle ABC is congruent triangle DEF. It was the solution of question number 11, my dear students. Now question number 12, the last question of this exercise I am going to start. ABCD is a trapezium. It is given that ABCD एक ट्रेपीजियम है। फिगर इज गिवन ABCD ट्रेपीजियम है, ABCD एक ट्रेपीजियम है एंड AD इक्वल्स टू BC। When AD equal to BC then we can say that ABCD is an isosceles trapezium। Isosceles trapezium की नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। Proved these 4 parts, 4 पार्ट हमें प्रूफ करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग, फर्स्टली I am going to draw the perpendicular on side DC। 2 perpendicular ड्रॉन किए हमने। कंस्ट्रक्शन, दिस इज अ कंस्ट्रक्शन। गिवन क्या है, गिवन है ABCD is an isosceles trapezium। गिवन है ये आपको। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AM perpendicular DC and BN perpendicular DC. Proof, first part. Second part, firstly I am going to proof of this question. Firstly I am going to congruent these 2 triangles. So in triangle AMD and triangle BNC में firstly angle AMD equals to angle BNC each 90. Second one AD equals to BC given. Third one AM equal to BN. Perpendicular this is the symbol of perpendicular distance between, this is the symbol of parallel sides are equal। 2 पैरेलल साइड्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। 90 के सामने हाइपोटेनियस और एक साइड, तो बाय RHS राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंट टूल से वी कैन से दैट ट्रायंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BNC। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। दिस इंप्लाइज एंगल D इक्वल्स टू एंगल C। लेट दिस इक्वेशन नंबर 1 बाय CPCT से। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर सेकंड। नाउ फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट। माय डियर स्टूडेंट, एज AB इज पैरेलल टू DC, जब AB DC के पैरेलल है देन एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल C इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय co-interior property, by co-interior angles. Now on one A plus D भी 180 के इक्वल है, B plus C भी 180 के इक्वल है। Now we can equate these 2 equations on equating above equation, on equating above equations, that is angle A plus angle D is equals to angle B plus angle C, but angle D is equals to angle C by 1 से, so angle A किसके इक्वल आ जाएगा, angle B के।
नाउ थर्ड पार्ट, प्रूव करना है इस ट्रेपीजियम में, अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम, ए बी सी ट्रेपीजियम में प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है ए बी डी के कॉन्ग्रेंट है, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, दोनों में कॉन्ग्रेंसी लगाने जा रहे हैं। फर्स्ट साइड ए बी इक्वल्स टू ए बी, दिस इज द कॉमन साइड। सेकेंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, प्रूव्ड इन फर्स्ट। और थर्ड वन ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये इसके इक्वल गिवन है, ये क्या है आपको गिवन है बाय साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी डी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। देन इन फोर्थ पार्ट वी कैन से दैट डायगोनल ए सी इक्वल्स टू डायगोनल बी डी बाई सी पी सी टी सी, corresponding parts of congruent triangle say we can say that diagonal AC equals to diagonal BD. This is the solution of question number 12. Students, today we have done the exercise 8.1. You have to solve all the example of this exercise 8.1. There are 6 example of this exercise you have to complete. Up to that, thank you. Have a good day, beta.